اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ السلام الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يتول الله ورسوله والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون صلوات پڑھیے محمد۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں شہزادی کونین بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت بسعادت کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ چونکہ آج روز جمعہ ہے اور شہزادی کی ولادت کا دن ہے، تو بہت ہی متبرک اور بابرکت یہ موقع ہے کہ جب روز جمعہ ہو اور کسی معصوم یا معصومہ کی ولادت کا دن ہو، تو بہرحال یہ سعادت ہم سب کے لیے نصیب ہوئی، خدا کا شکر۔ اور یہ سال بھی ہمارے اختتامی مراحل تک پہنچ رہا ہے، چونکہ اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو آج 12 دسمبر ہے، چند دن اور ہیں علیہ السلام، اور یہ سال بھی 2025 اختتام ہو جائے گا۔ بہرحال اگر آپ ملاحظہ کیجیے اور دیکھیے تو ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ ولایت اور سیاسی شعور۔ ولایت اور سیاسی شعور پر گفتگو چل رہی ہے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں بارہا اور بار بار عرض کرنے کی خدمت کی اور سمجھانے کی کہ بعض اوقات ولایت کے مفہوم میں، منطوق میں، مطلوب اور انسان کی مراد میں فرق ہوتا ہے۔ کبھی کبھی گفتگو کرنے والا گفتگو صحیح کرتا ہے، لیکن جو سامع ہوتے ہیں، سامعین ہوتے ہیں، ان کی برداشت جو وہ نتیجہ گیری کرتے ہیں، نتیجہ حاصل کرتے ہیں، جو اس سے وہ ایک اندازہ لگاتے ہیں، کبھی کبھی ان کے نتیجہ گیری میں اور سمجھنے میں فرق ہو جاتا ہے۔ یعنی کہنے والا کچھ کہنا چاہتا ہے، سمجھنے والا اپنے فہم اور عقل کی بنیاد پر سمجھتا کچھ اور ہے۔ لہذا اگر آپ ملاحظہ کیجیے اور دیکھیے تو ہمارے اذہان عالیہ میں یہ باتیں آئیں گی کہ ولایت اگر اپنے حقیقی معنی میں ہو تو ولایت کا اصل سرچشمہ خدا کی ذات ہے۔ خدا کی ذات سے ہمیں ہوتے ہوئے پیغمبر کی ذات تک، پیغمبر سے آل پیغمبر تک، اور آل پیغمبر سے ہوتے ہوئے یعنی ہمارے آخری امام کے بعد یہی ولایت عامہ میں اور ولایت خاصہ میں تبدیل ہو گئی۔ اس کے بعد کا جو مرحلہ تھا ولایت عامہ اور ولایت خاصہ کا، ولایت خاصہ چلی ہے مطلب نیابت کی صورت میں، وہ نیابت خاص 70 یا 72 سال تھی، اور نیابت عام جو اس وقت سے لے کر کے آج تک اور تا ظہور امام علیہ السلام کیا رہے گا، یہ ولایت عام چلتی رہے گی۔ اب اسی زمرے میں یعنی جو چیزیں ہمیں سمجھنی ہیں، جو ہمارے مقصود کو پہنچتی ہے، وہ ہے ولایت۔ اب اسی ولایت کو کوئی یعنی وقتی لے لے، کوئی قبول کرے، کوئی قبول نہ کرے، کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی اپنا سرپرست تسلیم کرے یا نہ کرے، کوئی حقیقی معنوں میں استعمال کرے یا نہ کرے، کوئی معلوم دیا غیر حقیقی معنوں میں استعمال کر رہا ہے، تو ہر ایک کی اپنی مراد، ہر ایک کا اپنا فہم، ہر ایک کی اپنی
जाविये निगाह और दीदगाह, ये सारी चीजें क्या होती हैं, फर्क करती हैं। और जब ये सारी चीजें फर्क करती हैं तो जाहिर सी बात है, अगर आप किताब देखिए तो किताब लिखने वाला कभी भी उसकी मुरादें हो सकता है वो ना हो जो आप ले रहे हो सकता है उसकी निगाहें वहां तक ना देख रही हो जहां तक आप देख रहे हैं, उसकी निगाहों में वो सारे मतलब ना हो जो आप महसूस कर रहे हैं। क्योंकि कोई एक इबारत लिख दी जाती है, कोई एक मफहूम लिख दिया जाता है, कोई एक मतलब लिख दिया जाता है, कोई एक तहरीर लिख दी जाती है, लेकिन वही तहरीर जमाने के एतबार से, मरूर जमान के एतबार से अपने माना क्या होती है, बदल लेती है। जैसे मैं मिसाल दे रहा हूं, मतलब आप चले जाइए 40 साल 45 साल पीछे। 40 साल 45 साल अगर आप पिछले दौर में चले जाएंगे तो उस वक्त यानी जो हमारी समझ का मेयार था वो और था, जो चीजें हम समझ रहे थे वो और था, जो हमारा सोचने का अंदाज था वो और था, जो हमारे मजहबी रुझानात थे वो और थे, जो हमारे गैर मजहबी रुझानात थे वो और थे। यानी उस वक्त की लाइफ में यानी इंसान के पास वक्त ज्यादा था, परेशानियां कम थी। आज परेशानियां ज्यादा हैं, वक्त कम है। उस वक्त इंसान के पास यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं था, मोबाइल के इतने प्लेटफॉर्म जो आज आसानी से हमें मुयस्सर हो जाते हैं ये नहीं थे। और नतीजा ये था कि उस वक्त ज्यादातर इंसान यानी देखा जाए तो मयाना रवि की जिंदगानी को क्या कर रहा था, बेहतर तरीके से गुजार रहा था। लेकिन आज देखा जाए तो इंसान इतना ज्यादा हरीस और लालची हो चुका है कि उसे जितना दे दो कम है, उसके पास जितना हो जाए कम है। क्योंकि उसके अंदर एक सिफत पैदा हो गई, जो सिफत यानी सूरह यासीन की एक आयत बयान करती है कि जहां पर यह कहा जाएगा जहन्नम से तेरा पेट भर गया, कहेंगे नहीं और लेकर के आओ, हल मिन मजीद, हल मिन मजीद, यानी और चाहिए, इजाफा चाहिए। तो ये वाली कैफियत जो है वो आज के जमाने में इंसान के अंदर क्या हो गई, पैदा होती गई। और जब हजरत इंसान के अंदर ये वाली सिफतें पैदा होती चली गई तो इंसान शुक्रगुजारी के बजाय नाशुक्री की तरफ बढ़ता चला गया। और जब नाशुक्री की तरफ बढ़ता चला गया तो यहां से उसका अंदाज जो था जिंदगी बसर करने का अलैहिस्सलाम, जो उसका तौर तरीका था, जो उसका सोचने का अंदाज था, वो भी बदल गया। यानी पहले कम में खुश था, आज ज्यादा में वो नाशुक्रा है। यानी मैं अपने अल्फाज का जिम्मेदार हूं, जो मैं अदा कर रहा हूं। चूंकि ये जो बातें मैं अर्ज कर रहा हूं ये सारी चीजें आज हमारे माशरे में, सोसाइटी में, समाज में ये सारी चीजें क्या करती हैं, दिखने को मिलती हैं। अभी जैसे यही 40 साल पीछे आप चले जाइए और आज के जमाने में, यही 40 साल पहले जब आप दस्तरखान करते थे तो उस वक्त की कैफियत और कंडीशन क्या थी अलैहिस्सलाम, और आज जब आप दस्तरखान कर रहे हैं तो उसकी कैफियत और कंडीशन क्या है, आप महसूस कीजिए जरा सा। भाई उस वक्त इंसान दस्तरखान से मुराद सिर्फ नजर नियाज यानी जो चीजें थी वो मुराद लेता था। लेकिन आज के जमाने में इंसान कहते हैं दस्तरखान है तो मुकम्मल तौर पर इंसान के खाने का इंतजाम होना चाहिए। अब ये बता दीजिए मफहूम बदला या तरीका बदला, मफहूम बदला या मंतूब बदला, हकीकी दस्तरखान बदला या गैर हकीकी दस्तरखान बदला। आप गौर कीजिए, यानी मरूर जमान के एतबार से अगर आप मुलाहिजा कीजिए और देखिए तो नतीजा क्या होगा, नतीजा ये होगा कि जमाने के हिसाब से यानी नजरियात चेंज हुए, और जब नजरियात चेंज हुए तो इंसान का तौर तरीका, रहन सहन, ये सारी चीजें क्या हो गई, बदल गई। और जब ये सारी चीजें बदल गई तो जाहिर सी बात है मरूर जमान के साथ साथ इंसान के सोचने का अंदाज बदल गया, इबादत करने का तरीका बदल गया, कमाने का तरीका बदल गया, रहन सहन करने का तरीका बदल गया। विलायत अपने हकीकी माना से एक उमूमी माना में, वो भी वो माना कि जो हमें पसंद है,
यानी उस चीज को यानी हमने क्या किया, कबूल कर लिया। अब जब इस चीज को हमने कबूल कर लिया तो नतीजा क्या होगा, नतीजा यही होगा कि हम दीन के ऊपर कब हैं, कितना है, ये गारंटी नहीं है, लेकिन हम अपने मिजाज के ऊपर कितना बाकी हैं, ये गारंटी है। यही आज के जमाने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। विलायत और सियासी शऊर को इतने मुकदमे के बाद अगर मैं एक जुमला कहना चाहूं तो आसानी कह सकता हूं कि आज के जमाने के लोगों का विलायत का माना और मफहूम का समझना अलग है, और जो उस जमाने के अफराद थे, यानी पैगंबर, आले पैगंबर के जमाने के अफराद जो थे, उनके जमाने में अगर विलायत के माना को लेना चाहें तो उनका मतलब यह था कि यब्न रसूलल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली इला आखिर, यानी जितनी भी चीजें मेरी अपनी हैं ये सब आपके, यानी आप मेरे नफ्सों पर, मेरी जान के ऊपर, मेरी मालों के ऊपर आप क्या हैं, हाकिम हैं। और यही वजह थी कि यानी पैगंबर ने 18 गदीर के मौके पर इकरार लिया था कि अलस्तु अलैहिस्सलाम औला बिकुम अनफुसिकुम, क्या मैं तुम्हारे नफ्सों के ऊपर हाकिम नहीं हूं। यानी ये नफ्सों के ऊपर हाकिम होने का मतलब यानी हम तुम्हारी जान, हम तुम्हारी माल, हम तुम पर पूरा अख्तियार। ये उस जमाने के जिन लोगों ने यानी मफहूम को समझा वो पैगंबर और आले पैगंबर के साथ रहे, यानी उन्होंने ये समझ लिया कि मेरा जीना और मेरा मरना सब आले पैगंबर के इशारे पर होना चाहिए। ये चाहे तो मैं जिंदगी बसर करूं, ये चाहे तो मैं अपनी जिंदगी को एक लम्हे में क्या कर दूं, इनकी कदमों में ले जाकर के निसार कर दूं। और आज के जमाने में उसी मफहूम को आप लेना चाहें तो आप कहेंगे हम तो इन्हें इमाम ही नहीं मानते, हम तो इन्हें वली ही नहीं मानते, हम तो इनकी सरपरस्ती में नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, यानी बात अपनी जगह से चली थी, लेकिन चूंकि हमने उसके अंदर अपना एक शोशा पैदा कर लिया तो नजरिया बदल गया, माना बदल गए, मफहूम बदल गया, मुराद बदल गई, अंदाज बदल गया। अब जब ये चीजें बदल गई तो जाहिर सी बात है दीन का हकीकी मफहूम बदल गया, इबादत करने का तरीका बदल गया, विलायत का तरीका बदला या नहीं बदला, बदला। अब जब बदला तो अब ये जो सियासी शऊर है, ये अगर उस सियासी शऊर को आज के जमाने में हम पैदा करना चाहें तो पैदा हो जाएगा, क्योंकि जब अपने हकीकी माना बदल गए तो जाहिर सी बात है जो एक शऊर होना चाहिए, एक समझ होनी चाहिए, एक इंसान के मिजाज होना चाहिए, तो मिजाज कैसे तैली करेगा। आप जरा सा गौर व फिक्र कीजिए, और मैं मिसालें देता हूं आपको समझाने के लिए। कभी कभी आप जाइए, ये जो हमारे पास और आपके पास ये स्मार्टफोन होता है, आप बता दीजिए किसी कंपनी का कोई भी पार्ट्स दूसरी कंपनी में लग जाएगा। मतलब अभी मोबाइल की आईसी चली जाए, मोबाइल का मदरबोर्ड कहीं से शॉर्ट कर जाए, तो आप क्या यानी किसी दूसरी कंपनी का मदरबोर्ड सेट कर देंगे या कर देंगे तो आप प्रॉपरली वो वर्क करेगा। हो सकता है ऑन हो जाए, स्टार्ट हो जाए, लेकिन प्रॉपरली वो वर्क नहीं करेगा। आप इसको कह रहे हैं, आप जरा सा अपनी बैटरी बदल करके देखिए, उसके वोल्टेज को जरा सा जो कंपनी ने सेट कर रखा है उसको बदल करके देखिए, फिर देखिए आपका मोबाइल प्रॉपरली वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं करेगा। ऑन होगा, ऑफ हो जाएगा, हैंग कर जाएगा, नहीं चलेगा, कहीं कुछ, कहीं डिस्टर्बेंस, कहीं सॉफ्टवेयर में, कहीं हार्डवेयर में, कहीं किसी चीज में, कहीं प्रोग्रामिंग में, कहीं अपने से मालूम कार लगा देंगे, कहीं अपने से पेजेस खुलना। एक मिसाल दे रहा हूं, यानी इसका मतलब क्या होगा, यानी इसका मतलब एक खराबी से आपका पूरा सिस्टम क्या हो गया, खराब हो गया। आज के जमाने में प्रॉब्लम यही है कि जब हमने विलायत के माना को जो पैगंबर की मुराद थी उससे अलग आकर के बदल दिया, तो अब सारी चीजें खराबी किसकी जिंदगानी में आएगी, इंसान की जिंदगानी में। मालूम दिया सब सही कर रहा है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि जो विलायत के हकीकी माना हमारे पैगंबर और आले पैगंबर दे करके गए थे, जो मफहूम उन्होंने दिया था, उस मफहूम से और उस माना से कहीं हमने
इनहराफ तो नहीं पैदा कर लिया अलैहिस्सलाम। और अगर इनहराफ पैदा कर लिया तो किस हद तक इनहराफ गया, किस हद तक हम बदले, किस हद तक हमने बहुत सारी चीजों में खराबियां पैदा की। मसलन अलैहिस्सलाम पैगंबर और आले पैगंबर की एक हदीस है, ये हदीस उन लोगों के लिए है जो आज के जमाने में ये कहते हैं जुमा वाजिब, जुमा वाजिब बोलिए जरा सा, नहीं है। जो लोग कहते हैं जुमा वाजिब नहीं है और हम जुमा पढ़ेंगे किसके पीछे, इमाम के पीछे, इन्हें पता है इमाम कब आएंगे? किसी को नहीं पता। कोई ज़ोहर का वक्त मुअय्यन नहीं कर सकता, और जब कोई ज़ोहर का वक्त मुअय्यन नहीं कर सकता तो हमें कैसे पता चलेगा इमाम कब आएंगे? सही है, इमाम ने जब इसके मुअय्यन करने का वक्त नहीं वो मुकर्रर किया है तो हम और आप कैसे? अब इसी चीज को मिलाइए अहादीसों से। अहादीसों ने क्या कहा? अहादीसों ने यही कहा कि अगर कोई इंसान जानबूझ करके अगर 3 जुमा तर्क कर देता है, रूह ईमान इससे, इसके वजूद से निकल जाती है, हत्ता यहां तक इसे कुफ्र की मंजिल में पहुंचा देती है। अब हम लाख अपने आप को मुसलमान कहते रहे, लेकिन हम जाहिर में मुसलमान तो हो सकते हैं, लेकिन बातिन में हम मुसलमान बाकी है या बाकी नहीं है, गारंटी नहीं है। अब जब बाकी है, बाकी नहीं, गारंटी नहीं है, तो अब आप जरा सा बताइए, हम तो अपने आप को मुसलमान बने फिर रहे थे और हकीकत में पैगंबर और आले पैगंबर की निगाह में हमारा ईमान ही खतरे में चला गया। क्यों? इसलिए कि हमने जुमा जैसी अजीम नेमत को अपने एतबार से ये कह के छोड़ दिया कि साहब पैगंबर और आले पैगंबर के जमाने में वाजिब था, गैर मासूम के जमाने में ये वाजिब नहीं है। और उसके अलावा अगर पाकिस्तानियों की अगर आप अपने पड़ोस मुल्क की आप वो कीजिए तो वहां बहुत सारे खुराफाती जो जाकिर हैं जिनका कोई कॉन्सेप्ट इल्मी और मेयारी नहीं है सिवाय कयास के। वो क्या कहते हैं? वो तो जुमा था ही नहीं, ये तो जुमा अभी ईरान के इनकलाब के बाद शुरू हुआ, इराक में कब शुरू हुआ, फला जगह कब शुरू हुआ। यानी हमारे और आपके अजहान को खराब करने के लिए हम दलील किससे लाते हैं? उनकी क्लिपों को, जिनकी क्लिपें मबनी कयास पर हैं। भाई हर चीज अपने एक शरायत रखती है मेरे अज़ीज़ों, शर्तें हैं तो आप उसको अंजाम दीजिए, वो शर्तें नहीं है तो वो आपके लिए साकित है। भाई इनसे पूछिए कि ईरान से पहले या उससे पहले ये जो हालात थे, कंडीशनें थी खुसूसी तौर पर शियों के लिए, खुसूसी तौर पर अहले बैत के पैरवानों के लिए, कि इनके पास यानी इजहार करने का मौका था साल 200 साल 250 साल पहले, कि ये अपने आप को ये कहते हैं मैं फला हूं, मैं फला हूं। जब जालिमीन और जाबरीन हुकूमतों का दौर था, बादशाह का, सलातीन का, कि जहां पर वो यानी अहले बैत का नाम लेना पसंद नहीं करते थे, वो नमाज कैसे पढ़ने की इजाजत दे देते? वहां पर आप तरवीज कैसे करते? मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? अब जब ये चीजें नहीं है तो अब लोगों के दरमियान कंफ्यूजन क्रिएट ना करो, क्योंकि सियासी शौर यहां पर क्या कहता है कि मोमिन की जान और माल का बचाना क्या है? जरूरी है। वो कदम उठाओ। विलायत हमें क्या करती है? विलायत हमें सही जिहत देती है, लेकिन जब विलायत के मफहूम को हम अपने से गुमराह कर ले तो यही जिहत क्या हो जाती है? बदल जाती है। और जब यही जिहत बदल जाएगी तो नतीजा क्या होगा? नतीजा यही होगा कि जब हमारा यदि शुरुआत से अकायद, अकीदा, यकीन, उसूल दीन की बुनियादें जब टेढ़ी हो जाएंगी तो उसके ऊपर जितनी भी बुनियादें फुरूए दीन के रखेंगे सब क्या हो जाएंगे? टेढ़ी हो जाएंगे। तो हमारा अकीदा जो उसूल दीन का है वो मजबूत होना चाहिए। वो इतना मजबूत होना चाहिए कि तौहीद, आदल, नबूवत, इमामत, कयामत, ये तुम्हारे बेसिस जो हैं, ये जो तुम्हारा फाउंडेशन है, यानी ये मजबूत होना चाहिए। अब जब ये मजबूत हो जाएगा तो इसके ऊपर की जो बुनियादें हैं, यानी अभी आप देखिए बहुत सारे अफराद यानी हमारे यहां उलमा के दरमियान, अवाम के दरमियान ये सीक्वेंस ला करके हटा दिया कि फुरूए दीन का कोई सीक्वेंस ही नहीं है। अब सुनिए,
بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جو لا کر کے اس چیز کو رکھتے ہیں کہ پہلے نماز ہونا چاہیے یا پہلے تولا اور تبرع ہونا چاہیے، پہلے نماز ہونا چاہیے، روزہ ہونا چاہیے، حج ہونا چاہیے، زکات ہونا الی آخر، اور اس کے بعد دعویٰ یہ کہ یہ سیکوینس تو فلاں ادارے کا بنایا ہوا ہے لہذا ہم قبول، جبکہ اسی ادارے کی کتاب پڑھ کر کے ہی انہیں اصول دین اور فروع دین پتہ چلا ہوگا۔ یعنی غور کیجیے میرے عزیز، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عوام الناس کے درمیان ایسی گفتگو نہ کرو کہ جو ہماری بنیادوں کے کیا کر دے، شکوک و شبہات میں ڈال دے، کیونکہ حدیثوں کی طرف جاؤ گے تو اول چیز جو کوشش کی جائے گی، اول چیز جو سوال کیا جائے گا قیامت کے دن جو پوچھا جائے گا وہ روایتوں میں ہے، چونکہ ایک چیز واجب ہے بے نفس سے اور ایک چیز واجب ہے عقیدے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، دونوں میں فرق ہے۔ آپ دونوں کو لا کر کے ملائیے نہیں، کیونکہ جہاں پر تولا اور تبرع ہے یہ ہمارے وجود میں وہ ہے، لیکن اگر نماز ہمارے وجود پہ، ہمارے نفس کے اوپر، ہمارے اپنے اوپر واجب ہے یا واجب نہیں ہے، اور نہ پڑھے تو سزا ہے یا نہیں ہے، ساری چیزیں وہ ہیں۔ تو جو دیدگاہ ہے، نظریہ ہے، اس نظریے کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، کسی سیکوینس کے اوپر سوال کرنے کی اور اس کو سوالیہ نشان کے تحت ڈاؤٹ پیدا کرنے کی کوشش نہ کی جائے، کیونکہ یہ چیزیں جو علماء کی بہت ساری محنتیں ہیں، انہی چیزوں کو بچانے کے لیے اگر آپ آئیے تو بہت ساری چیزیں آپ سمجھ نہیں پائیں گے، کیونکہ جب تک یہ مسجد کے محراب بچے ہیں تو سمجھیے منبر بچا ہوا ہے، ورنہ پیغمبر کی وہ حدیث کی ایک دور وہ آئے گا کہ جب ہم منبروں پر بندروں کو اچھلتے دیکھیں گے تو یہ محراب کے منبر تھے یا وہ والے منبر کی بات تھی؟ یہ دیکھیے، یعنی یہ سب اپنے ایک مفاہیم رکھتے ہیں میرے عزیزوں، کسی کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں، لیکن صرف یہ ہے کہ صحیح جہت دو، ورنہ پیغمبر کی احادیثوں کو ملائیے تو آج آپ دیکھیے معلوم دیا خطیب کم ہے ایکٹر زیادہ ہیں، خطیب کم ہیں معلوم دیا اچھلنے کودنے والے زیادہ ہیں۔ کیا مطلب؟ کیا آپ سیدھے سے انداز بھی اپنی بات نہیں کہہ سکتے، لیکن جب تک ایکٹنگ نہیں ہوگی تب تک نیچے والوں کو مزہ کہاں آئے گا، جب تک وہ اپنی رانے پیٹ پیٹ کر کے لال اور نیلی اور پیلی نہیں کر لے گا تب تک۔ ایک سلوات پڑھیے سمجھے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس میں فرق کرنا پڑے گا، تب جا کر کے یہ جو ولایت اور سیاسی شعور ہے، چونکہ جب تک ولایت اپنے حقیقی معنی نہیں رکھے گی سیاسی شعور پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ بعض افراد پیغمبر اور آل پیغمبر کے زمانے میں جا کر کے دیکھیے جو سمجھدار تھے، جن کے اندر شعور تھا، بہت سارے افرادوں نے یعنی ہمارے ائمہ سے مصلحت کی بنیاد پر کچھ نے دوریاں بنائیں اور جا کر کے ترویج دین کیا، تاسیس سے عقیدہ نہیں کیا کہ معلوم ہے ہم جا کے عقیدہ بنائیں، چونکہ عقیدہ ہمارا پہلے ہی سے اصول دین مضبوط ہے، سمجھ آ رہا ہے؟ ہم جا کر کے وہاں پر سیکوینس کو آگے پیچھے نہ کریں، چونکہ ہم تاسیس سے عقیدہ کرنے کے لیے نہیں آئے، ترویج دین اور ترویج عقیدہ کے لیے آئے ہیں۔ تو بہت سارے افراد اس طریقے کے بھی پیغمبر اور آل پیغمبر کے زمانے میں تھے، کیونکہ مصلحتیں تقاضا کرتی تھی کہ آج کے زمانے میں، بس آخری بات نتیجہ دینا چاہتا ہوں، جیسے آج کے زمانے میں اگر کوئی انسان یعنی اپنے عقیدے کا اظہار نہیں کرتا، آخری بات کہہ رہا ہوں، اپنے عقیدے کا اظہار نہیں کرتا ویسے جیسے ہم چاہتے ہیں، لیکن کام وہ وہی کرتا ہے جیسے ہم کرتے ہیں، تو کیا ایسے انسانوں کے بارے میں ہمیں ایک سوالیہ نشان اٹھانا چاہیے؟ میں سب کی بات نہیں کہتا، ہو سکتا ہے کچھ ایکٹر اور بہروپی قسم کے ہوں، لیکن اس میں سے ہو سکتا ہے بعض واقعی وہی قرآن کی روش جو جناب حزقیل کے بارے میں کہی تھی، جو فرعون کے دربار میں تھے اور اس کے بعد کہا تھا کہ یہ
مومن آل فرعون ہیں. یعنی آل فرعون میں کون ہے؟ مومن. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. ابھی ہماری یوم رسول کے موقع پر یہ یوم حسین کے موقع پر حسین ڈے تھا، اس میں اسی طریقے سے گفتگو ہو رہی تھی، اور جس میں انہوں نے کہا مولانا آپ نہیں جانتے کہ اگر اوپر سے پیکنگ خراب ہو ضروری نہیں کہ مال بھی خراب ہو. یعنی ان کا جواب میں سوچنے لگا کہ ہو سکتا ہے ظاہر میں یہ کچھ اور دکھا رہے ہیں، لیکن ان کا عمل، ان کا عقیدہ، ان کا طور طریقہ وہی ہو جو اہل بیت چاہتے ہیں. صلوات پڑھیے سب مل کر. تو یہ ہے سیاسی شعور. نہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو دعویٰ تو کریں لیکن ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہماری مکاری، ہماری بےمانی یہ سب کہیں پر اور لے کر کے جائے. تو ہمیں وہاں پر جانا ہے جو اہل بیت پیغمبر چاہتے ہیں. اور جب ہم ان کی حقیقی ولایت کے زیر سایہ آ جائیں گے تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، پروردگارہ ہمیں شعور دے، ہمیں سمجھ دے، ہمیں اچھی زندگانی دے، ہمیں سمجھنے کا طور طریقہ دے، ہمیں نقش اہل بیت پر چلنے کی توفیق دے، ہمیں ان کا پیروکار بنائے، کیونکہ ان کا راستہ حق ہے، کسی اور کا راستہ حق نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. صلوات پڑھیے محمد وآلہ. عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں سلسلے مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ پیغمبر اکرم انسانی کرامت کے علمبردار. دوسرا خطبہ شروع کرنے سے پہلے ایک بار پھر میں آپ حضرات کی خدمت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت بسعادت 20 جمادی الثانیہ سن 562 کو یہ عصمت کبریٰ کا پیکر جناب خدیجہ کی گود میں آیا. پیغمبر کے گھر میں یہ آیا، اور یہ عصمت کبریٰ جب پیغمبر کے گھر میں آئی تو اپنے وجود کے ان مفاہیم کو لیتے آئی کہ جس پر یہی کہا گیا کہ تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے. اگر اس چیز کو سمجھنا ہے تو پیغمبر اکرم کی بیٹی کی زندگانی کو دیکھنا پڑے گا، اور ان سے جو دروس ہمیں ملتے ہیں اور ملے ہیں ان کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنا پڑے گا. تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ پیغمبر اکرم انسانی کرامت کے علم بردار ہیں، اور انہی کا گھرانہ ہم سب کے لیے کیا ہے؟ آئیڈیل ہے. ہم سب کے لیے ایک نمونہ ہے، ہم سب کے لیے ایک اسوہ ہے. اور جب اسوہ ہے تو ظاہر سی بات ہے، یعنی 1,24,000 پیغمبر آئے بشریت کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے، لیکن خواتین کی ہدایت کے لیے اگر پیکر بشری میں
कोई मखलूक आई तो सिर्फ और सिर्फ जो मासूमा हैं सिद्दीक़ ताहरा सलामुल्लाह अलैहा, ये आई और आने के बाद अपने बाप की बेहतरीन अक्कास, अपने बाप की बेहतरीन आइडियल, अपने बाप की बेहतरीन उसवा, अपने बाप का बेहतरीन अक्स, अपने बाप की बेहतरीन झलक, यानी जहां पर वो अगर पैगंबर रहमतुल लिल आलमीन थे तो ये रहमतुल लिल आलमीन के लिए रहमत थी। सल्लल्लाहु मुहम्मद समझ रहे हैं, यानी इस तरीके से ये आई थी और आने के बाद यानी इन्होंने पैकरे बशरी के चंद दिन इस तरीके से गुजारे कि आपने यानी एक जिंदगी इनकी वो है कि जो शादी से पहले है और दूसरी जिंदगी वो है जो शादी के बाद है। यानी जनाब फातिमा ज़हरा की अगर आप जिंदगानी को देखना चाहें तो आप इनकी जिंदगानी को दो हिस्सों में तकसीम कीजिए, एक क़ब्ले इज़्दिवाज यानी एक शादी से पहले और एक बाद इज़्दिवाज यानी शादी के बाद। अगर आप इन चीजों की तरफ देखना चाहें और समझना चाहें तो आप बआसानी देख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। कैसे? इज़्दिवाज से पहले जनाब फातिमा ज़हरा की शख्सियत क्या थी? अपने बाप के घर में थी। ये मैं आज पैगाम दे रहा हूं यानी तमाम खवातीन के लिए, और आप जाकर के ये जो खुतबात के चंद फिकरात हैं इसको जाकर के अपने घर में पहुंचा दीजिएगा, ताकि जो एक आइडियल है, एक उसवा है, एक नमूना है, एक जो तर्ज जिंदगानी है यानी शहजादे की, वो जिंदगानी का तौर तरीका यानी हमारे घरों में क्या होना चाहिए? राइज होना चाहिए। वो हमारे घरों में यानी ये जो है सीरत के तौर पर अपनाया जाना चाहिए, ताकि हम अपनी बेटियों को, हम अपनी बहनों को, हम अपनी बहुओं को, हम अपनी माओं को यानी तालीम तरबियत जो घर के अंदर राइज करें और अमल करें, वो है सिद्दीक़ ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा की तालीम। चूंकि पैगंबर इंसानी करामत के अलंबादार मुकम्मल तरीके से हैं, लेकिन इन्हीं इंसानी करामतों में अगर देखा जाए तो इंसान में अगर इंसानियत और आदमियत को देखा जाए तो ये दो सिंफों में जाकर के तकसीम होती है। एक सिंफ का नाम है मर्द और एक सिंफ का नाम है औरत। मर्दों के लिए 1,24,000, लेकिन सिर्फ निस्वा के लिए सिर्फ एक वाहिद खातून आई है कि जो इनके लिए आइडियल है, और उसकी इतनी मुख्तसर सी जिंदगी है कि कुल 18 साल है। 18 साल में इसे बेहतरीन बेटी, बेहतरीन ज़ौजा, बेहतरीन मां और बेहतरीन बहन, अब इनकी बहन तो थी नहीं, अब इनकी बेटी ने नमूने पेश किए बहन का, यानी जैसे सिद्दीक़ ताहिरा जिनको सानिया ज़हरा कहा गया, इन्होंने दिखाया बहन और भाई की मोहब्बत, यानी वो किरदार जो इधर से रह गया था वो इन्होंने क्या किया? मुकम्मल करी। मैं इसलिए इस गुफ्तगू को वो कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे अफराद भी जो आज कहते हैं पैगंबर की इतनी बेटियां थी, इतनी बेटियां थी, तो ये क्या यानी शहजादी से बेटियों वाला रुतबा और जो मर्तबा था वो छूट गया? वो मोहब्बत चलन कहां गई जो बहनों बहनों में दिखना चाहिए थी, बहन भाइयों में दिखना चाहिए? सही है। खैर, मुझे उस तरफ नहीं जाना है, लेकिन आप जरा सा अंदाजा लगाइए कि शहजादी ने अपने बाप के लिए जो जिंदगी का तरीका अपनाया वो क्या अपनाया? आकर के वैसे ही जैसे आज बेटियां अपनाती हैं,
जो लोग बेटी वाले हैं, जिनको अल्लाह ने रहमत दी है, बेटियां दी हैं, वो अच्छे समझते हैं कि अगर बेटी आकर के बाप के पैरों से लिपट जाती है, मतलब बच्ची कमसिन है, आई, क्योंकि वो उसका कद छोटा है, पैरों से लिपट जाती है। मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या इसकी इस मोहब्बत को आपकी रूह महसूस करती है या नहीं करती है? लोग बेटी के सिलसिले में माओ की मिसाल देते हैं, लेकिन शायद मैं समझता हूं कि जितना एक बेटी के लिए बाप का दिल तड़पता है, शायद मां का कम तड़पता हो, क्योंकि बेटी कहीं पर भी हो, अगर वो परेशान होती है तो जो रूह तड़पती है वो बाप की तड़पती है। बस ये कि इजहार नहीं कर सकता, उसके पास इजहार का वक्त नहीं है, इजहार के लिए अल्फाज नहीं, लेकिन रूह की तासीर, रूह का एहसास, जो फीलिंग है, वो उसको अल्फाजों में नहीं बयान कर सकता। लेकिन पैगंबर ने एक लफ्ज कह के एहसास को जगाया। क्या कहा? फातिमतो उम्मो अबिया, उम्मे अबिया, दोनों लफ्ज मिलते हैं। यानी फातिमा अपने बाप की मां है। इसका मतलब क्या हुआ? यानी पैगंबर ने मोहब्बत के इजहार के लिए, यानी अगर ये बताया ना होता तो हम बाप और बेटी की मोहब्बत को पता ही नहीं सकते। ये वो मोहब्बत थी जिस मोहब्बत को पैगंबर ने अगर लफ्ज देना चाहा तो एक लफ्ज में जाकर के समेट दिया और कहा फातिमा अपने बाप की मां है। यानी ये लफ्ज है। और इसके अलावा अल्फाजों में जाकर के देखिए तो वो लफ्ज जो हम आमतौर से इस्तेमाल करते रहते हैं, सब कहते हैं मेरी बेटी मेरी आंखों का नूर है। जाहिर सी बात है, नूर होना और आंखें होना दो अलग अलग माना है। आंखें हो सकती, बसारत हो ना हो, गारंटी नहीं है, लेकिन अगर नूर है तो इसका मतलब गारंटी है आंखें हैं। सही है ना? इसलिए बेटी को आंखें नहीं कहा गया, नूर कहा गया। जब हम कार्ड शादी का छपाते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं? नूर चश्म, नूर चश्मी। इसका मतलब क्या हुआ? यानी ये ना समझना ये मेरी आंखें हैं, मेरी आंखों का नूर है जिसको हम तुम्हें दे रहे हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ? यानी ये हम तुम्हें वो दे रहे हैं कि जिसका तुम एहतराम करना, जिसको तुम इज्जत से करना। इसलिए कि हम अगर शरीयत के आगे, उसके सिस्टम के आगे मजबूर हैं तो उसी सिस्टम को चला रहे हैं जो शरीयत ने हमें दिया, कि अगर हम तुम्हें अपने कलेजे के टुकड़े को बेटी की सूरत में, तुम्हें जौजा की सूरत में अता कर रहे हैं तो जौजा को तुम लेकर के तो जाना, लेकिन इसकी रूह को तुम तड़पाना नहीं, इसकी रूह को तुम अजियत ना देना, इसके जिस्म को तुम अजियत ना देना। क्यों? इसलिए कि हमने जो तरीका दिया है वो यही दिया है कि जब हमें जनो शौहर का रिश्ता बना करके तुम्हें एक बाप अपनी बेटी को हवाले करता है तो वो ये सोच करके नहीं हवाले करता कि मैंने अपनी बेटी जो जिस्म का टुकड़ा थी वो दिया, कहता है कलेजे का टुकड़ा था वो हमने तुम्हें दिया है। सही है, उसे हमने दिया, तो अब इसे ले जाकर के इसके साथ जितना अच्छा बर्ताव करोगे, शरीयत कहती है जन्नत में उतना ही आला दर्जा तुम्हें मिलेगा। समझिएगा जरा सा। यानी ये वो बातें हैं जो यानी उमूमी तौर पर आज पढ़ी जानी चाहिए। क्योंकि आज शहजादी की विलादत का दिन है, इनकी अजमत नहीं बयान करें तो कौन बयान करेगा? सही है। अजमत सैयदा में एक सलवात पढ़िए सब मिलकर। जरा सा गौर कीजिए। यानी अब इसका मतलब क्या हुआ? पैगंबर इंसानी करामत के अलमबरदार, इंसानियत है तो आइडियल पैगंबर होने चाहिए। अब यहीं पर जब यानी इंसानियत को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक मर्द के लिए एक औरत के लिए, तो मालूम दिया औरत के लिए आइडियल कौन? बीवी फातिमा आइडियल। सही है। अब जब ये आइडियल हैं तो अब समझ में आया कि पैगंबर ने, आले पैगंबर ने यही कहा था कि खबरदार अगर तुम्हारे पास बेटी है तो उसके रुखसारों पर तमाचे
ना मानना। सोचिए जरा सा, क्या इससे कमतर भी कोई जुमला हो सकता है? क्योंकि इंसान जब किसी को अजियत देता है या अपने गुस्से का इजहार करता है तो सबसे पहला जो उसका हाथ उठता है वो रुखसार पे होते हैं। शरीयत ने क्या कहा? अगर बेटी का नाम फातिमा रख दिया, मासूमा रख दिया, इनके उस पर रख दिया तो खबरदार तमाचे ना मार देना। अब जब बेटी के लिए हुक्म है तो अब जरा सा शौहरों से जाकर के पूछो कि तुम्हें बेटी यानी अपनी बीवियों के ऊपर हाथ उठाने का अख्तियार किसने दिया? जाओ मेरे अजीजों, शरीयत को समझो। क्योंकि आज हम आग बगोला हो जाते, नेचुरल है गुस्से का आना, लेकिन अगर इन्हीं गुस्से के ऊपर हमारे तरबियत जो दीन ने हमें निजाम दिया है वो अगर फर्माबरदार हो जाए तो हम ये सोचेंगे नहीं, इसका नाम तो वो है जो सिद्दीका का नाम था, इसकी सीरत तो वो है जो सीरत सैयदा थी, इसका किरदार तो वो है जो इसका वो है, इसका हिजाब वो है जो शहजादी। जाओ इसकी खुसूसियात को याद करना शुरू करो, ऑटोमेटिक तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा। इसलिए शरीयत कहती है कि तुम्हें जब गुस्सा आए तो अपनी जगह बदल दो। गुस्सा आ रहा है इस कमरे में, हम उठे इस कमरे से दूसरे कमरे में चले गए, दूसरे कमरे से और गुस्सा आ रहा है, निकले बाहर चले गए। कहा बस अगर खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ। कहा ये गुस्सा कम करता जाएगा, और अगर तुम इसके अपोजिट लेटे हो बैठ गए तो गुस्सा दुगना, बैठे हो खड़े हो गए तो उसका दुगना। शरीयत तो हमें सब बताती है ना। तो आप समझ में आया? यानी मेरा मैसेज लेकर के जाइएगा। आज विलादत का दिन है, अपने बेटियों के लिए, अपनी बहनों के लिए, मां बाहयात हो मां के लिए, जौजा मौजूद हो जौजा के लिए एक छोटा सा तोहफा तो लेकर के जाओ, इसलिए कि यौम मादर है, मां का दिन है, मदर डे है। फातिमा क्या है? फातिमा पूरे आलमीन की मां है। आज इनकी विलादत का दिन है तो यौम मादर होना चाहिए, मदर डे होना चाहिए। तो ऐसे मौके पर जाओ, एक छोटा सा तोहफा लेकर के जाओ, ताकि जब तोहफा लेकर के जाओगे तो इनको बताओ ये तोहफा हम लाए हैं शहजादी की विलादत के सिलसिले में। उनसे मोहब्बत का इजहार करो, रूठी हुई तो उन्हें मना लो, नाराज हैं उनसे सॉरी बोल दो, इसलिए कि एक सॉरी बोलने में यहां कुछ नहीं जाएगा, लेकिन अगर इसका बदला कल कयामत के दिन लिया गया और तमाम इंसानों के सामने तुम्हें रोना पड़ गया, फिर क्या होगा? एक बंद कमरे में सॉरी बोलना आसान, सही है, क्योंकि सॉरी बोलने में कुछ नहीं, और इसी सॉरी को अगर हम एक और लफ्ज दे दें तो इसी का नाम तो तौबा है, जिसे हम कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह, परवरदिगार माफ कर दे, ये कर दे, वो करे। अल्फाजात की तरफ तुम जाओ तब समझ में आएगा कि इसकी अजमत क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इसका किरदार क्या है। अब जब शहजादी, आखिरी बात, इस सिलसिले नतीजा आपकी खिदमत में, जब शहजादी के लिए जाओगे तो हमेशा कुछ लेकर के जाना, वलो एक मीठी चीज ही हो, तुम्हारी हस्बे हैसियत हो तो जाओ शहजादी के नाम के ऊपर उनको लिबास दिला करके आओ, उनको नया पिराहन दिला करके लाओ, नए कपड़े दिला करके लाओ, जो उनकी ख्वाहिश हो। अगर तुम्हारे तवान में हो पूरी करने की कोशिश करो, नहीं है तो कम से कम दो मोहब्बत के बोल तो बोल सकते हो। इन्नी उहिब्बुके, मैं तुमसे प्यार करता हूं, जाओ अपनी मां से कहो, अपने बहन को बोलो, जाओ अपने जौजा से कहो। इसलिए कि ये लफ्ज जो होता है, ये मैं इसलिए वो कर रहा हूं ताकि नौजवानों के लिए जाकर के अरे गैरे को ना बोलने लगना, बोलना उनको जिनका हक है, और जब हक हो जाए तब बोलते रहना, कोई हरज नहीं है। सलवा पढ़िए सब मिल जाके। इंशाअल्लाह आज की हदीस के साथ ठीक 8:30 बजे इसी मकतब में, इसी मस्जिद में होगी। आप हज़रात कसी तादाद में तशरीफ लेकर के आइएगा, और इंशाअल्लाह ये जो दस्तरखान का मौका चल रहा है कई दिनों से और इंशाअल्लाह हफ्तों तक चलता रहे।